So now we are going to understand the concept of erasing NVRAM. For this demonstration, I am going to prepare a network diagram within my Cisco Packet Tracer. तो इस network diagram के लिए what exactly I am going to do is I am going to make a use of a router. और जो मैं router ले रहा हूँ एक generic purpose का router ले रहा हूँ. So I am going to make a use of this router 0 and again I am going to make a use of this router 1. So in this network diagram I have two routers, a generic one router. अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्विच. तो इधर मैं एक स्विच ले लेता हूँ विच इज गोइंग टू माई जेनेरिक पर्पज स्विच. तो हेयर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्विच 0 एंड स्विच 1 एंड विद दिस स्विच आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू एंड डिवाइसेस. एक मैं ले लेता हूँ PC0, PC1, PC2 एंड PC3. नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस नेटवर्क डायग्राम. For the cable, I am going to make a use of a automatically chosen type cable. So I am going to select this and I am going to make a use of this automatically chosen cable. So I am going to connect this switch with this PC0, this switch with this PC1. Same I am going to do with this network 2. I am going to connect this switch 1 with this PC2 and I am going to connect this switch 1 with this PC3. Same I am going to make a use of this automatically chosen connection type in order to connect this router with this switch. And in order to connect these two routers, I am going to make a use of again automatically chosen connection type cable. So this is my network diagram. So now the next step is I am going to configure this network diagram. For this network, I am going to make a use of an IP address 192.168.1.1. ये वाला मेरा IP एड्रेस रहेगा फॉर दिस नेटवर्क एंड फॉर दिस नेटवर्क एड्रेस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 192.168.2.1. तो कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ उसमें राउटर को. इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस राउटर 0 एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस राउटर 0 एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टैब. इसको मैं CLI के थ्रू नहीं कर रहा, आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली. हाँ, इस वाले का मैंने 2.1 लिया. So I'm going to click on this router 0 and I'm going to make a use of interface fast Ethernet 0/0. I'm setting an IP address over here 192.168.1.1 and the subnet mask will be 255.255.255.0. हाँ, ये मैंने आपका किया fast Ethernet 0/0 पे. And I'm going to turn the port status on. So I'm going to click on this checkbox. ओके अभी मेरे को इसमें इतनी सेटिंग करनी है एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस विंडो. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस राउटर 1. इसके लिए जो मैंने IP एड्रेस लिया वो लिया आपका 192.168.2.1. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन एंड विद इन दिस फास्ट ईथरनेट 0/0 आई एम गोइंग टू सेट एन IP एड्रेस 192.168.2.1 and I'm going to make this port status as on. Now the next step is to ये जो serial connection की केबल है, on this serial cable I am going to set this IP address 192.168.2.1 on my router 0. तो router 0 पे मैंने क्लिक किया and I am going to select the serial port 2/0 and I am going to set an IP address of my router 1. तो router 1 के इंटरफेस में जो मैंने IP address लिया वो लिया 192.168.2.1. ओके 2.1 मैंने लिया. आई एम गोइंग टू on the port status और यहाँ पर मैं clock rate सेट करता हूँ 64,000 which is our default clock rate. That's it for my router 0. I'm going to make a use of this router 1 और इस router 1 में I'm going to set an IP address of this 192. कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेट आपको एक बार करना होता है. सेलेक्ट से यहाँ पर I'm going to select the serial port 2/0 और यहाँ पर मैं राउटर 0 का IP एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.1.1 पोर्ट स्टेटस ऑन और यहाँ पर मैं क्लॉक रेट सेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर सेट कर चुका हूँ. हाँ, सीरियल पोर्ट पे मैंने ये वाला IP एड्रेस लिया. राउटर 1 पे देखो, राउटर 1 के सीरियल पोर्ट पे मैंने ये वाला IP एड्रेस लिया और राउटर 0 के सीरियल पोर्ट पे मैंने ये वाला IP एड्रेस लिया सीरियल पोर्ट 2/0 पे. ओके, तो क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव अ सीरियल इथरनेट पोर्ट 2/0.
Okay. So now the next step is to I am going to configure this PC. अब इन PCs पे configuration करने के लिए I am going to select this PC, select desktop and click on this IP configuration. तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 192.168.1.3.2 ले लेता हूँ. ओके और इसका जो डिफॉल्ट गेटवे रहेगा वो रहेगा आपका 1.1, दिस वन जो मैंने लिया हुआ है. आई एम गोइंग टू क्लोज दिस. सेम आई एम गोइंग टू डू विद दिस PC1. डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करनी है, आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ 192.168.1.3 और डिफ़ॉल्ट गेटवे में रख दूँगा 1.1. अब यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 2.1 फॉर माई नेटवर्क बी. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस PC2 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.2. दिस इज माई आईपी एड्रेस. ओके और डिफ़ॉल्ट गेटवे में रख देता हूँ 2.1. Same I'm going to do this with my PC3 desktop again, IP configuration 192.168.2.3 and the default gateway I'm going to set is 2.1. So now you can see that my network configuration has been done. Configuration अब हमने कर दी है. Now I'm going to check whether I am able to communicate with this PC2 and with this PC0. So I'm going to select this packet. So मैं PC2 से यहाँ पर एक बार PC0 को भेज के देखता हूँ. Okay. Let's say तो जा पा रहा है मेरा PC2 से PC0 पे, PC3 से PC1 पर भी जा पा रहा है. अगर एक बार नहीं जा पाया तो आप एक बार दोबारा करके देख लो, देन इट विल गेट सक्सेसफुल. ओके तो थोड़ा सा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगता है. सक्सेसफुल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से PC2 पे PC1 पे भी जा पा रहा है, PC3 से PC0 पे भी जा पा रहा है और ये दोनों आपस में भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. मतलब आपका एक नेटवर्क प्रिपेयर्ड है. सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस राउटर 0 और मैं यहाँ पर अगर हूँ CLI टैब पे तो मैं एक बार एग्जिट प्रेस करता हूँ जब तक कि मैं यूजर एग्जीक्यूशन प्रिविलेज मोड पे ना आ जाऊं. इधर here I am going to type a command show running configuration file. तो ये show running configuration वो आपकी सेटिंग्स दिखा देती है जो अभी आपने करी हुई. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने इंटरफेस पे 5.0 पे एक आईपी एड्रेस सेट किया होगा 192.168.1.1 और इसी तरीके से भी सीरियल पोर्ट 2/0 का भी दिखा देगा कि एक क्लॉक रेट सेट है और उसका आईपी एड्रेस है 2.1. तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आपको पता है कि अगर राउटर की पावर हम टर्न ऑफ कर दें तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल चली जाती है. तो वी हैव टू स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द स्क्रैच. हमको फिर दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर मैं इस राउटर की पावर को क्या कर दूं अभी फिलहाल टर्न ऑफ. So in order to do that, what exactly we need to do is we have to copy this configuration file within our startup configuration file. So I'm going to copy. हाँ. So let's say I'm going to copy this running configuration to my startup configuration. तो ये जितनी भी मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की होती है ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉपी हो जाएंगी. सो दिस इज गोइंग टू बी द माय डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन. अगर आपको चेंज करें तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर क्योंकि मेरे को बाय डिफॉल्ट यही नेम रखना है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन. ओके तो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज डन. सो इवन इफ आई टर्न ऑफ माई राउटर, अगर मैं इसको पावर ऑफ भी कर दूँ तो भी अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो मैं यहाँ से अब वापस कर सकता हूँ. किस तरीके से आप कर सकते हो बैकअप, पता है वो आपको स्टेप कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से किस तरीके से बैकअप करते हैं हम. ठीक है तो लेट्स से अब यहाँ पर एक और सिनेरियो आता है, वो ये आता है कि सपोज करो ये जो अब आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी, ये जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है ये प्रेजेंट होती है आपके NVRAM में. और NVRAM आपका तब बूट होता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है. अब सपोज करो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पा रहा. अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तो NVRAM भी नहीं लोड होगा और फिर आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट गोइंग टू वर्क. इसके लिए वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस TFTP सर्वर.
तो उससे पहले मैं आपको ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि अगर हम NVRAM को इरेज कर दें तो क्या होगा. फॉर दिस व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, तो लेट्स से पहले डेमो में ये करके देखते हैं कि अगर हम NVRAM को उड़ा देते हैं तो क्या हम ये बैकअप कर पाते स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का. फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस राउटर 0 एंड हियर आई एम गोइंग टू टाइप अ कमांड इरेज. किसको इरेज करना चाहता हूँ? मैं करना चाहता हूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िग को. ये चल जाएगी सर. हाँ, अभी देखो मैं इसे मार के देखता हूँ एंटर. तो ये मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू इरेज दिस NVRAM. सो आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर इन ऑर्डर टू कंफर्म. तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एंटर, इरेज ऑफ NVRAM हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है, अब लेट्स से आप एक बार कमांड टाइप करो शो स्टार्टअप -config. सो अब आपको दिख जाएगा दैट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट. और अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँ तो अभी तक तो मेरा राउटर चल रहा है. जैसे ही मैं इसको करूँगा रीलोड, इफ आई ट्राई टू रीलोड दिस, तो अभी ये जितना भी ग्रीन है ये सारा दोबारा से रेड हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू टाइप दिस रीलोड, आई एम गोइंग टू कंफर्म. तो अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा है. तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम मेमोरी में होता है, तो सबसे पहले वो डीकम्प्रेस होता है. तो अभी ये डीकम्प्रेस हो रहा है. सो कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, आई एम गोइंग टू प्रेस नो. और अब हम राउटर की बाय डिफॉल्ट सिचुएशन पे वापस आ चुके हैं. तो अब राउटर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी फास्ट इथरनेट 0x0 की, वो हट चुकी है. और सीरियल पोर्ट 2x0 की ये भी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हट चुकी है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ यूज ऑफ अ TFTP सर्वर. यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं अपने TFTP सर्वर का in order to back up this running configuration file. So in the next demonstration we are going to perform this demo.